Assalamu alaikum students. Today we will discuss the transport of food and water from the chapter number 9, that is transport. Firstly, the transport of water in plants. The transport of water in plants is done by cohesion tension theory. And according to this theory, there is a force which carries water and the dissolved materials upward through the xylem is transpirational pull. In previous lecture, we have studied that transpiration creates a transpirational pull, and this is the pulling force which carries water from lower portion to the upper portion of the plant. And so this is the cohesion tension theory through which water is transported from the lower portion of the root to the upper portion of the plant. And transpiration creates a pressure difference that pulls water and salts up from the root. Now the mechanism. When a leaf transpires, the water concentration of its mesophyll cells drops. होता क्या है कि जो प्लांट का लीफ है वहाँ से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हुआ, वाटर लूज़ हो चुका है, ठीक है। अब उसी के उसकी एनाटॉमी देखी जाए लीफ की, तो अब आउटर जो है एपिडर्मिस होती है, उसके बाद मेसोफिल सेल्स होते हैं। उन मेसोफिल सेल्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है क्योंकि वहाँ से वाटर मूव आउट हो चुका है, बाहर चला गया हुआ है, ठीक है। नाउ दिस ड्रॉप काजेज वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम जाइलम ऑफ लीफ इनटू मेसोफिल सेल। अब उस लीफ से जो लोअर पोर्शन है तक जो जाइलम है वहाँ पे प्रेजेंट, वहाँ से जाइलम से वाटर मूव करके ऑस्मोसिस के थ्रू मेसोफिल सेल्स पे आता है, ठीक है। इसी तरह एक मालिक्यूल जो है वो जाइलम का वहाँ से मूव करके मेसोफिल पे आता है, तो जाइलम के अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यू है एक पुल क्रिएट हो जाता है, और वो पुल जो है वो फिर वहाँ से लीफ के अपर पोर्शन से रूट तक डेवलप हो जाता है, जिसके थ्रू जो वाटर है वो मूव करता है अपर साइड पे। Next is the reasons of transpirational pull. There are three main reasons. Firstly is there is a water is held in a tube, that is xylem, and it has a small diameter. Number two is adhesion, means the water molecules adhere to the walls of xylem tube, and cohesion is water molecules cohere to each other. And now these attractions make an overall tension among water molecules के वो जो उनके वाटर मालिक्यूल की जाइलम के साथ और वाटर मालिक्यूल्स के आपस में जो अट्रैक्शंस हैं, ठीक है, उससे एक टेंशन प्रोड्यूस होता है, मीन्स तनाव, और उसके थ्रू एक वाटर कॉलम क्रिएट हो रहा है। अब वो वाटर कॉलम जो है वो शूट से लेके रूट तक डेवलप होती है, और इस तरह जो वाटर है वो मूव करता है सॉइल से इनटू दीज कॉलम्स एंड देन इनटू द प्लांट सरफेस। दिस इज द अपर डायग्राम ऑफ anatomy of leaf, where you can see the blue dots. These are the water molecules, and in the long rod is the xylem. Now as transpiration occur, water moves out from the leaf surface mesophyll cells, so the water concentration is decreased in mesophyll cells, and so water move from the xylem into the mesophyll cell, and as one molecule of water move from the xylem into the mesophyll cells, there is a production of tension, and this tension produce a pull, and that pull is responsible for the transport of water from lower portion to the upper portion. Next is transport of food. Transport of food is done by the conducting tissue, that is known as phloem, and the food that is transported in plants is glucose, and in most plant food is transported in the form of sucrose. प्रेपरेशन जो हो रही है फूड की वो ग्लूकोज की फॉर्म में हो रही है, लेकिन जब वो ट्रांसपोर्ट होनी होती है फूड तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है अदर मालिक्यूल के अंदर, डेट इज़ सुक्रोज। एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज़ डन बाय प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म देयर आर टू थिंग्स, सोर्स एंड सिंक। सोर्स इज़ द एक्सपोर्टिंग ऑर्गन, वो ऑर्गन है जो देगा, और सिंक वो एरिया है जहाँ जो ले रहा है, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है। So sink is the area of active metabolism or storage, and the storage organ is capable of storing food and exporting the stored material. जो क्या है, स्टोर कर सकता है या फिर एक्सपोर्ट करता है स्टोर्ड मटेरियल को, उसको हम स्टोरेज ऑर्गन कहते हैं। और स्टोरेज ऑर्गन जो है वो क्या है, सिंक है, सोर्स देने वाला और सिंक लेने वाला। Now the process at source, the food is moved by active transport in the sieve tubes of phloem. Phloem consists of components that is known as sieve tubes, ठीक है, डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स है। उसमें जो sieve tube है उसके अंदर फूड एंटर हो जाती है,
फिलोइम के अंदर एंटर हो चुकी है। अब फिलोइम के अंदर क्योंकि फूड एंटर हो चुकी है, मीन्स शुगर एंटर हो चुकी है, तो सल्यूट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है। सल्यूट शुगर ही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि फिलोइम के बिल्कुल साथ जाइलम प्रेजेंट है, जाइलम से वाटर मूव करके उस फिलोइम के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी तो हायर जो, और सॉल्वेंट कम था, तो सॉल्वेंट जो है वो मूव करता है फ्रॉम हायर पोर्शन टू द लोअर पोर्शन. Now this results in higher pressure of water in these tubes which drive the solution of food towards sink. वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका है, वाटर क्योंकि मूव आउट कर चुका है, प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से अब ये उस साइड पे जाएंगे जहाँ पे ज़रूरत है फूड की, मीन्स के सिंक की तरफ जहाँ पे प्रेशर ऑलरेडी क्या है, कम है. सो हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर. नाउ द एट द सिंक एंड फूड इज़ अनलोडेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो है वो मूव, फूड जो है वो मूव करती है और इस तरह वो सिंक को मिल जाती है. अब क्या है, फूड ट्रांसपोर्ट हो चुकी है, पीछे रह गया वाटर. सो नाउ दिस वाटर एग्जिट्स फ्रॉम दिस सीव ट्यूब्स. अब उस उन्हीं सीव ट्यूब से वाटर जो है वो भी मूव आउट हो जाएगा, मीन्स के अगेन वापस जो है वो जाइलम के अंदर चला जाएगा. एंड द एग्जिट ऑफ वाटर डिक्रीजेस प्रेशर इन सीव ट्यूब विच काजेज अ मैस फ्लो फ्रॉम द हायर प्रेशर एट द सोर्स टू द नाउ लोअर प्रेशर एट द सिंक. जैसे ही वो वाटर प्रेशर, वहाँ से वाटर रिमूव हुआ, प्रेशर रिलीज़ हुआ, प्रेशर कम हो गया, तो जो सोर्स था, अब अगेन वो पोर्शन जहाँ से फूड आई थी वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होगा और वहाँ से अगेन फूड जो है वो मूव करके लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी, मीन्स सोर्स टू सिंक. सो दिस इज़ द प्रोसेस डेट हाउ food is transported in the plants. So today's studies learn the topic transport of water and food from the page number 181 to 184. Thank you.